all. I welcome you all to today's digital marketing masterclass. So I request you all to switch on your camera. Students, am I audible? Yes, ma'am. So please, I request you all to switch on your camera so that we can make this session more interactive. No responses, like how will we make this session interactive? अगर आप अभी से respond नहीं कर रहे हो. Okay, no issues. I guess you all are not even interested in responding to me. So we'll start with our the introduction of Struwelli Technology to you all. So Struwelli Technology Private Limited has a successful track record in the field of academia, research, training, recruitment, and job assistance since its inception in 2018. We also offer training and internship for all levels of the professional world. It starts from plus two level to a seasoned professional. We in Strawberry Technology emphasized academic and research development, as no civilization can survive without education and can't progress without research. We work with each applicant to prepare them for employment ready. Struwelli Technology bridges the gap between employer and employee via industry or product specific selection and pre-employment training. Just for a quick look, I'm sharing my screen and showing all the unique services which we Struwelli Technology Private Limited family holds. So I'll be sharing my screen now. And thank you, Chitra, for switching on your camera. So I hope my screen is visible to you all. Yes, Uh, ma'am. Thank you, Bhumika, for the confirmation. So for teaching and learning platform, we have Prayu, where we provide comprehensive courses crafted with industry leaders for career advancement. Then we have internship training programs, which is through intern, where we offer hands-on internship programs, which is like made for all of you. And then we have professional resume builder, which is Resume Ocean, where we build AI resumes. Then we have our job portal, that is Navrojan, where we offer personalized career guidance and job search support. Then we have for education, that is Vidyapun, where we offer diverse study materials and interactive courses for academic excellence. Then for psychometric, we have Sudakshta, where we facilitate personal and professional growth through psychometric analysis. For research, we have Anushram, where we support research endeavors with resources and expert guidance. So these are all the services which we Struwelli Technology family holds. And I'll be for like today's your masterclass, your trainer will be Shivangini Mohan. She has over 5+ years of experience in digital marketing. So over to you, Shivangini, ma'am. Thank you, Arzu. Is my voice audible? Yes, it is. Yeah. Thank you, Arzu, for introducing me. Thank you so much. Okay. Good afternoon, everyone. I'm so sorry. My laptop camera is not working. That's why I'm won't be able to open it. I'm so sorry for that. So let's get started towards our today's session. And today's topic is about growth marketing. But before starting it, I just want to confirmation from you all कि आप लोग जितने भी हो सब डिजिटल मार्केटिंग के रेलेवेंट में हो कि अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग भी आप लोग ज्वाइन किए हो, मतलब ऐसा कोई
है पर्सन, जस्ट यस और नो चलेगा। कोई भी नहीं है क्या ऐसा? Friends, please raise your hand if you are from digital marketing field. You can raise the virtual hands. ओके, आई एम एसोसिएट विद डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अंशुमान। ठीक है, गुड इनफ, चलेगा इतना। लेकिन प्लीज मैम थोड़ा मैं अगर भी यहाँ इंटरेक्ट। पे डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो अगर आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव या फिर अगर आप लोग भी कम्युनिकेट करोगे ना तो चलेगा, बिकॉज जितना कम्युनिकेट करोगे सेशन आप लोग को भी इंटरेस्टिंग लगेगा और बोरिंग नहीं लगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ठीक है, देखिए, ग्रोथ मार्केटिंग, और मेरा क्वेश्चन ये था इसलिए था डिजिटल मार्केटिंग का पूछने का, बिकॉज जो आज हम लोग टॉपिक या अभी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रोथ मार्केटिंग का, वो समहाउ कहीं ना कहीं आपके डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट है। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग के अपार्ट फ्रॉम मतलब डिजिटल मार्केटिंग भी कोई पर्सन आया है तो कोई टेंशन की बात नहीं, इजी टॉपिक है, तो थोड़ा मतलब समझने में मे बी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, बट हाँ इतना भी कोई टफ पार्ट नहीं है ये। सो ग्रोथ मार्केटिंग के बारे में आप लोग कितना जानते हो? मतलब कभी ये टर्म सुना है आप लोगों ने, ग्रोथ मार्केटिंग? किसी ने भी नहीं? निखिल, नो मैम, अनिल? ग्रोथ मार्केटिंग हाँ। का नहीं, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का सुना था। मतलब वो करते भी हैं, कोर्स भी है उसका। यस, लेकिन ग्रोथ मार्केटिंग का नहीं। अच्छा, आपका गुड नेम? पूजा। मैम पूजा। वेरी गुड। सो अच्छा लगा पूजा, आपने इंटरेक्ट किया। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है ये ग्रोथ मार्केटिंग। ग्रोथ मार्केटिंग बेसिकली क्या है कि अगर बहुत सिंपल टर्म में अगर हम लोग इसे समझने की कोशिश करें ना, तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इधर आप अपने करियर में ग्रोथ देखो, चाहे बिजनेस में देखो, इवन तो अगर आप किसी इंटरव्यू कभी कंपनी स्विच करते हो तो आपके सीवी में भी ग्रोथ देखा जाता है। विदाउट ग्रोथ तो आपको कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इन अ सिंपल टर्म अगर ग्रोथ को हम लोग जाने, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ करो किसी कंपनी के लिए या फिर किसी भी वेबसाइट के लिए या फिर किसी भी क्लाइंट के लिए, चाहे आप पीपीसी करो, पीपीसी मीन पे पर क्लिक, या फिर आप सोशल मीडिया करो, हर जगह ग्रोथ चाहिए। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग में दो टर्म्स भी सुने होंगे। अगर हम सी, मेरा कोई ऐसा पीपीटी का नहीं है, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं ग्रोथ मार्केटिंग का लेके। तो आप लोगों ने दो टर्म भी सुने होंगे। एक आपका डिजिटल मार्केटिंग में होता है ओल्ड मार्केटिंग, एक आपका होता है ओल्ड मार्केटिंग टर्म। ओल्ड मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, जिसमें कि आप लोग पैम्फलेट्स हो गए, बिलबोर्ड्स हो गए, या फिर न्यूज़पेपर्स में आप लोग क्या करते हो, अपने आर्टिकल्स पब्लिश करते हो। ठीक है, तो ग्रोथ मार्केटिंग आपके बिलबोर्ड से भी होता है। ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज हैं, अगर आप लोग अपने रियल अगर एनवायरमेंट में अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तो अभी भी जो आप बोल सकते हो ओल्ड मार्केटिंग जो होती है डिजिटल मार्केटिंग में, वो अभी भी आपकी क्या चल रही है, करंट सिनेरियो में रन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सबसे इजी टर्म का लेते हैं या बिजनेस लेते हैं, दैट इज योर रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का सबसे ज्यादा आप लोग क्या देखते हो? बिलबोर्ड्स देखते हो, हाईवेज पे जाते हो, इवन फ्लाईओवर्स पे जाते हो तो उनके बड़े बड़े होल्डिंग्स क्या होते हैं वहां पे, पुट होते हैं। तो मार्केटिंग चाहे कैसी भी हो, चाहे वो आपकी ऑफ मार्केटिंग हो मतलब ओल्ड टाइप मार्केटिंग हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, डिजिटली आप ऑनलाइन किसी चीज को सेल आउट कर रहे हो, या फिर आप बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू बिजनेस कैसे भी अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, हर में अपने को क्या चाहिए होती है, ग्रोथ। तो अपना जो ग्रोथ मार्केटिंग है टेक्निकली, वो आपका किस लिए यूज किया जाता है, हैकिंग प्रोस्पेक्टिव से। बहुत लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंडर में, डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत लोग ग्रोथ मार्केटिंग को क्या बोलते हैं, ग्रोथ हैकिंग। बहुत लोग ग्रोथ हैकिंग भी इसको टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम लोग ग्रोथ मार्केटिंग की बात करें तो इसमें अपने फनल्स होते हैं। बेसिकली इसमें अपने क्या होते हैं, फनल्स होते हैं। अब वो फनल्स कौन कौन से होते हैं? अ, अगर आप लोग ने डिजिटल मार्केटिंग का अगर कोर्स कर रहे हो तो आप लोग भी बता सकते हो, नहीं तो हम तो यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग फनल, ग्रोथ मार्केटिंग फनल के बारे में, क्लासिकल फनल जिसे हम लोग कहते हैं। किसी को पता है क्लासिकल मार्केटिंग फनल के बारे में या अप्रोच के बारे में? नो किसी को मैम। भी? ठीक है, देखिए, जो
डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो आपकी ग्रोथ मार्केटिंग होती है उसमें आपके कुछ बेसिक क्लासिक फनल्स होते हैं, जो कि मे बी अगर आप लोग कहीं इंटरव्यू में भी अगर आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो उसमें पूछे जा सकते हैं, जिसे हम लोग तीन टर्म्स में लेते हैं। उसे हम लोग कहते हैं टोफू। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टोफू। इसका हम एलैबोरेट भी आपके सामने करेंगे। सेकंड इज योर मोफू एंड बोफू। ये तीन क्लासिकल टर्म्स में आपकी डिजिटल मार्केटिंग, चाहे कोई भी बिजनेस हो, XYZ कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, ये तीन क्लासिकल टर्म्स में ही क्या किया जाता है? आपके क्लाइंट्स को अप्रोच किया जाता है। टोफू स्टैंड्स फॉर, आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहे तो आप लोग कर सकते हो। टोफू स्टैंड्स फॉर टॉप ऑफ द फनल, जिसे हम लोग कहते हैं टॉप, TOP, टॉप ऑफ द फनल। ठीक है। मोफू को हम लोग बोलते हैं मिडिल, मिडिल ऑफ द फनल। एंड बोफू को हम लोग बोलते हैं बॉटम। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं। किसी को किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे इनिशियल टर्म क्या होता है? कौन बताएगा आप लोगों में? किसी भी बिजनेस को अगर स्टार्ट करना होता है तो सबसे इनिशियल अप्रोच अपनी क्या रहती है? मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग। और टारगेट। प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए हम प्रोडक्ट, यहाँ पे आप लोगों की सर्विस, अप्रोचेस लिखते इन्वेस्टमेंट। चलते हैं। मार्केटिंग पहला था आपका, ठीक है। सेकंड था मार्केट। मार्केट के बाद क्या था? प्रोडक्ट किसी ने बोला था? यस प्रोडक्ट। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट। क्या 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 बोला आपने चित्रा? मैम, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और ठीक है, चलिए। और सर्विस हो सकता है। हाँ, सर्विस। चलिए अब देखिए, इसके बारे में अगर आप लोग का एकदम करेक्ट है, अगर बेसिक मार्केटिंग अप्रोच अपनी देखी जाए तो सबसे पहला ऐसा आता है मार्केट। इसी को अगर हम लोग एक ऑर्डर वाइज में अगर हम लोग चले, ये तो अभी ऑर्डरिंग में नहीं है, बट अगर हम लोग ऑर्डर में चले तो सबसे पहली अप्रोच अपनी आती है मार्केट की, कि भाई जो बिजनेस हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उसका मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, क्या आप ऑल ओवर इंडिया में ये काम करना चाहते हो, या स्पेसिफिक सिटी में करना चाहते हो, या किसी स्टेट में करना चाहते हो? तो मार्केट का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मार्केट से भी पहले अगर हम लोग बात करें तो मार्केट से भी पहले हम लोग को एम होना चाहिए अपनी ऑडियंस का। ठीक है, ऑडियंस का, उसके कॉम्पिटिटर का, उसकी वैल्यू का, कितनी ग्रोथ फ्यूचर में हम लोग पा सकते हैं उसका। अब जो अभी हम लोग ने बात किया था थोड़ा देर पहले क्लासिकल मार्केटिंग अप्रोच के बारे में, जिसमें टोफू, मोफू एंड बोफू ये तीन टर्म में आपके काम चलते हैं, चाहे वो कोई भी बिजनेस आपका हो। तो जो ये टोफू होता है फर्स्ट लेवल, ठीक है, मार्केटिंग अप्रोच का फर्स्ट लेवल, जिसे हम लोग टॉप ऑफ द फनल कहते हैं। टेक्निकली इसमें हम लोग करते क्या है, ये बहुत इनिशियल स्टेज होता है। जो ये टोफू आपका होता है, ये आपका क्या होता है? एक इनिशियल स्टेज होता है, जिसमें कि हम लोग लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं टूवर्ड्स आर प्रोडक्ट और ब्रांड और सर्विसेज। समझ में आइए टोफू काम क्या करता है फर्स्ट लेवल में? अगर नहीं तो हम रिपीट भी कर सकते हैं इस चीज को। एक बार हम रिपीट करते हैं, देखिए। टोफू बेसिकली क्या करता है, ये एक इनिशियल स्टेज होता है, ठीक है, आपके मार्केट को एम करने का। आपके मार्केट को एम करने का ये सबसे इनिशियल स्टेज होता है, जहां पे आप लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंसेस को अपने प्रोडक्ट या ब्रांड या फिर आप सर्विसेज के लिए क्या कर सकते हो? अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर अगर टेक्निकल वर्ड में बात करें तो अवेयरनेस जनरेट कर सकते हो। ठीक है, कहाँ से कर सकते हो? अब बात करें अगर डिजिटल मार्केटिंग की, तो अवेयरनेस कहाँ से जनरेट हो सकती है? सबसे पहला आपका आता है ब्लॉगिंग। ठीक है, अभी भी बहुत लोग हैं, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर इंडस्ट्रियल पर्सन्स हैं जो ब्लॉग पढ़ना प्रेफर करते हैं। ठीक, आप लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप लोग सोशल मीडिया पोस्ट कर सकते हो।
फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, लिंक्डइन पोस्ट आप लोग क्रिएट कर सकते हो। इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकते हो। अब इंफॉर्मेटिव वीडियोस कैसी होती है? इंस्टाग्राम पे तो सब लोग हो गए आज के टाइम पे, ऐसा कोई भी पर्सन है जो इंस्टाग्राम पे नहीं है। तो इंस्टाग्राम पे कोई भी XYZ प्रोडक्ट आता है तो आप लोग उसका वीडियो देखते होगे ना, कि अगर ये मानिए लेट कंसिडर एक विटामिन सी सिरम है, तो उसके प्रोस क्या हैं, वो कहाँ कहाँ आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके सर्टिफिकेट्स मतलब वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड कौन सी कंपनी है, कितने आपके क्लाइंट्स उसको यूज कर चुके हैं, उन क्लाइंट्स के रिव्यूज, ये सारी चीजें आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस में क्या होती हैं, पता चलती हैं। उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से पुट होते हैं। अब अगर हम लोग एज अ कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल एज अ कस्टमर लेट कंसिडर, थोड़ा सा अगर हम लोग बाहर चले इससे और बहुत कॉमन टॉपिक पे बात करें, सिर्फ टोफू के बारे में, ठीक है, सिर्फ टोफू को ही लेकर, तो आप अब मुझे मेल्स का तो नहीं पता, बट आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे aqualogica.in की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में तो सुना ही होगा, उसके एड्स भी आते हैं, ठीक है, बहुत लोग यूज भी करते होंगे। तो आज से पहले कभी सुना था एक्वालॉजिका के बारे में या .in की के बारे में? सबसे पहले कौन से मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको ये सुनने को मिला था, या इसकी एड देखने को मिली थी? कहीं से तो आपको सुनने में आया होगा ना कि नहीं भाई लैक्मे और इन सब कुछ, बिकॉज ये लैक्मे वैक्मे तो बहुत पुराने ब्रांड्स हो गए हैं, ये तो अभी मार्केट में नए ब्रांड्स आए हुए हैं जिनको अभी आते हुए भी मुझे लगता है 3 साल भी प्रॉपर नहीं हुआ है इन प्रोडक्ट्स वाले ब्रांड को। तो अगर माने कोई एक्वालॉजिका है, .in की है, या फिर कोई भी XYZ और भी कोई ब्रांड्स है, तो इनके बारे में आप लोगों ने कहाँ से सुना? कहीं तो ऐड देखा होगा ना, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो आपके व्हाट्सएप पे, अगर आपको क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस पे अगर आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आए होंगे। मेन थिंग ये आती है, सुनने से ज्यादा आप अगर उसको यूज करते हो तो आपको वो अट्रैक्ट क्या किया उस एड में। कोई ऐसा है जो कोई प्रोडक्ट यूज करता है इसमें? कोई भी ऐसा पर्सन? यस और नो चलेगा, कौन सा यूज करते हो उससे नहीं फर्क पड़ता। यस मैम। तो क्यों यूज किया, मतलब क्या सोच के उसको यूज किया? बिकॉज वो कोई पुराने ब्रांड्स तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कोई पुराने ब्रांड्स, नए हैं। उनकी मार्केटिंग, उनको पता है जो न्यू जनरेशन है, जो कमिंग जनरेशन है, जो रनिंग जनरेशन है अपनी, वो किन सब चीजों को लेकर अट्रैक्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राइटनिंग को लेकर, ग्लोइंग को लेकर, टैनिंग्स को लेकर, इन सब लोगों को चीजों को लेकर कहती है वो अट्रैक्ट होती है। तो उन लोग उन की पॉइंट्स को क्या करते हैं, ऑडियंसेस के अपने वीडियोस में पुट करते हैं, तब जाके हम लोग, दो उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं क्योंकि उन लोग क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट क्वालिटी किसी को नहीं पता थी कैसी है, वो यूज करने के बाद पता चलती है। तो जो हम लोग, जब न्यू कोई कंपनी आती है और उसके जब हम लोग ऑडियंस बनते हैं ना, तो हम लोग उस इनिशियल लेवल पे टोफू कहलाते हैं। क्योंकि जब हम लोग को कोई एड दिखती है, चाहे वो आपके सर्च इंजन मार्केटिंग हो, जैसे हम लोग PPC भी कहते हैं, पेपर क्लिक, चाहे वो आपकी फेसबुक एड्स हो, इंस्टाग्राम एड्स हो, यूट्यूब एड्स हो, तो जो फर्स्ट इनिशियल अवेयरनेस वाली जो स्टेज होती है, जो अभी मैंने आपको कहा कि टोफू इज द इनिशियल स्टेज वेयर मार्केट एम टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंसेस, ठीक है। तो वो आपकी जो इनिशियल स्टेज होती है, वो अपने बिजनेस को क्या करने के लिए होती है, ग्रो करने के लिए होती है। तो कोई भी बिजनेस जो आपका शॉर्ट होता है, जो नया स्टार्टअप स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले टोफू पे वर्क करता है। विदाउट टोफू वो कहीं से भी अपने ऑडियंसेस को बिल्डअप नहीं कर पाएगा। होप सो आप सबको समझ में आया हो। अगर कहीं पे कुछ आपको आपकी तरफ से भी कोई क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ है? मैम जैसे हाँ। अभी तो कह रहे कि ये लार्ज ऑडियंस को टारगेट करता है, तो हम्म। जैसे इंस्टाग्राम पे जो उसको सर्च करता होगा उसी को दिखते होंगे कि मतलब नहीं, सबको बिल्कुल नहीं, दिखता है? सबको दिखता है वो। देखिए अच्छा क्वेश्चन था आपका चित्रा। देखिए अब बात क्या आती है कि जब आप इंस्टाग्राम पे कोई भी कैंपेन जैसे कोई एड को रन करते हो, ठीक है, जिसे स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है, या फिर आपके स्टोरीज में जो दिखती हैं, तो उनको अपनी स्टार्टिंग स्टेज की ऑडियंसेस के बारे में पता होता है। अब मानिए, अभी हम अभी उसी पुराने ही टॉपिक पे आते हैं, एक्वालॉजिका एंड .की पे ही आते हैं, ठीक है। एक्वालॉजिका प्रोडक्ट अगर हम लोग लेते हैं,
कितने से कितने एज की जो भी जेंडर होगा, ठीक है, मेल और फीमेल कोई भी पर्सन होगा, क्या लगता है कितने एज के लोग यूज करते होंगे एक्वालॉजिका? लमसम, कोई फिक्स नहीं होना चाहिए, अप्रोक्स में चलेगा बात। 25 to 35। ठीक है, 25 to 35। मे बी हम 25 भी नहीं लेते, आजकल 9th 10th के भी बच्चे थोड़े एडवांस हो चुके हैं, अब वो मिलेनियल वाले नहीं रह गए, वो जेंसी वाले आ चुके हैं और अल्फा वाले भी आ चुके हैं। तो हम 35 लास्ट कंसिडर करते हैं 18 to 35 की एज को। तो करेक्ट है, बिकॉज अब 35 प्लस भी ले लेते हैं, 40 तक भी अगर ले लेते हैं, तो 40 वालों को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको पता है समहाउ कहीं ना कहीं माउथ टू माउथ अगर कोई प्रोडक्ट जो 18 से लेकर 35 वाले लोग हैं, अगर वो यूज करेंगे, वो माउथ टू माउथ भी क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट के क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। अब ये 40 प्लस वालों को क्यों नहीं लेते, जो हमारे मम्मी पापा के एज वाले? क्योंकि उनको पता है इंस्टाग्राम पे इस टाइप की जो जनरेशन है या इस एज की जो जनरेशन है, वो अभी बहुत एग्रेसिवली नहीं आई है। तो इसलिए वो इंस्टाग्राम पे जब आप एक एज कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है ना, वो एक लिमिटेड एज वालों को दिखना फ्लो में स्टार्ट हो जाता है। वो ऐसा नहीं कि जो यूज करेगा उसी को दिखाई देगा, वो कॉमनली हर एज वालों को दिखाई देगा। आया समझ में चित्रा? अगर आपको जेन्युइन आंसर नहीं लगा तो आप और भी डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मतलब ये एज एन टारगेट नहीं करता, ये ओवरऑल मतलब ये इनके टारगेट ही एडवर्टीजमेंट। ऑडियंस है, ओवरऑल नहीं है, ये इनके टारगेट ही ऑडियंस। जो आपने 35 बोला ना, 25 to 35 एज, ये क्या आपने यस बोला, ये मैम। टारगेट ऑडियंस बोला है। हाँ, तो अगर वही। ओवरऑल होता ना तो ये 40 प्लस वालों को भी लेता। हाँ, तो ये वही इनकी चीज मैम, टारगेट मतलब ऑडियंस है। इन अ लार्ज, मतलब कि ओवरऑल सबको कवर कर लिया उस स्पेसिफिक एज में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्लियर है ना चित्रा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस मैम। ओके। अब सेकंड हम लोग आते हैं, होपफुली टोफू में किसी को प्रॉब्लम ना हो, अगर है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई मैम ऐसा? हेलो। हाँ बोलिए। जो हम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं वो एज के अकॉर्डिंग, क्या जो क्लाइंट इंटरेस्टेड हैं क्या हम उस ऑडियंस को टारगेट भी कर सकते हैं इसमें? हाँ, लेकिन वो तब जो आप कर सकते हो जब आपको पता हो कि मेरी इंटरेस्टेड ऑडियंस कौन सी है। इन द ओके। सेंस कि वो कब पता चलता है आपको, जब आप नए मार्केट में एंटर होते हो। तो जो चित्रा ने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर वो है कि वो एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं, कि मतलब इतने से इतने एज वालों के लिए ही ये प्रोडक्ट बना हुआ है। एज के अब अलावा भी कुछ चीजें हम टारगेट कर सकते हैं हाँ, क्या? एज के अलावा भी आप उनके क्या बोलते हैं, प्रोफाइल से कर सकते हो, आप उनके सिटीज से कर सकते हो, आप उनके क्या बोलते हैं बैकग्राउंड से कर सकते हो, आप पेरेंटल, नॉन पेरेंटल, मैरिड, नॉन मैरिड, आप हर तरीके से उनको टारगेट कर सकते हो। ओके। मतलब आप बहुत ज्यादा डीप टारगेटिंग इसमें कर सकते हो, इसमें इन द सेंस की होल डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत डीप मार्केटिंग कर सकते हो। बट डीप तब इफेक्टिव होता है जब आपका बिजनेस एकदम कॉन्फिडेंट है और आप एकदम कॉन्फिडेंट हो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेकर, कि मार्केट में अगर हम लोग बहुत डीप मार्केटिंग करेंगे या फिर बहुत सेलेक्टेड मार्केटिंग करेंगे तो मुझे लॉस तो नहीं होगा, बट प्रॉफिट हम लोग मिडिल में मतलब सरवाइव कर सकते हैं। ये तब यूज होता है। ठीक है, चलिए। अब सेकंड हम लोग आते हैं मोफू पे। अब आते हैं सेकंड स्टेज। इनिशियल स्टेज अपना टॉप था, विच इज योर टोफू। सेकंड स्टेज इज योर मोफू, विच इज मिडिल ऑफ द फनल। ठीक। अब मिडिल ऑफ द फनल में क्या होता है, फिर से देखिए एक बार हम इसमें हम शॉर्ट टर्म में एक बुलेटिन यहाँ पे पुट कर देते हैं, टोफू इज फॉर अवेयरनेस। अवेयरनेस, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ये अवेयरनेस की मार्केटिंग होती है। अब आते हैं हम लोग मोफू पे, जिसे हम लोग कहते हैं मिडिल ऑफ द फनल। अब मिडिल ऑफ द फनल में क्या होता है, जो कि अभी आपका शायद अनिल ने पूछा था क्वेश्चन ये वाला कि डीप मार्केटिंग का, तो अब जी। आपका वाला आंसर आता है इस पे। जब आप ऑल ओवर, जो आप बोला ना कि ऑडियंसेस आप किस किस तरह से मार्केट कर मतलब टारगेट कर सकते हो मार्केटिंग के अंदर, तब आप मोफू के अंदर आ जाते हो। मोफू में आप क्या करते हो, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को, अपने हम्म। पोटेंशियल
कस्टमर्स को टारगेट करते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप बाय एज, बाय जेंडर, बाय प्रोफेशन, बाय मैरिड, नॉन मैरिड, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेजेस, या फिर कोई प्रोफाइल, आप इनसे अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। लेट कंसिडर जूक करके एक ब्रांड है, ZOUK, जो हैंडबैग्स, लेडीज हैंडबैग्स को क्रिएट करता है। सॉरी बॉयज अगर आप लोग को ऐसा लगे कि हम सिर्फ फीमेल्स प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बट इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। अब देखिए, बात इसमें क्या आ जाती है, जूक जो प्रोडक्ट है, अगर वो एक लैपटॉप बैग को क्या करता है, बिल्ड करता है, ठीक है, फॉर मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव से, तो वो लैपटॉप बैग को किन किन लोगों को टारगेट करेगा, आप लोग बताओ। या फिर लेट कंसिडर वुडलैंड है, ठीक है, वुडलैंड का एक लैपटॉप बैग, वुडलैंड ने एक लैपटॉप बैग को पब्लिश किया, एक लॉन्च किया, अपना न्यू लॉन्च लेकर आया है वो, ठीक है, तो वो किन किन ऑडियंसेस को टारगेट करेगा। अरे बहुत इजी, बताइए तो। और वुडलैंड, क्या 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 बोला आपने। वुडलैंड मेंस की ऑडियंस को अधिक टारगेट करेगा। नहीं, वुडलैंड जो है वो बैग्स भी आपको देता है, शूज के लिए भी है, मेंस के लिए भी है, बट वो बैग्स भी है। मानिए लैपटॉप बैग्स वो लॉन्च करता है, या फिर मैं मानिए कोई भी एक ऐसा ब्रांड है जो लैपटॉप बैग को बिल्ड किया, न्यू लॉन्च लेकर आया है लैपटॉप बैग का। लैपटॉप बैग को वो मेंस को टारगेट करेगा मैं। हम कॉमन लेके चलते हैं, एक जी। ऐसा ब्रांड है XYZ करके, जो ब्रांड है जो यूनिसेक है, वो ठीक। मेल फीमेल दोनों को टारगेट कर रहा है, लेकिन वो लैपटॉप बैग की ही मार्केटिंग, स्पेशली लैपटॉप बैग की ही मार्केटिंग करना चाहता है। तो वो क्या ओके। करेगा, वो प्रोफेशंस को लेगा, जी। वो क्या करेगा, वो प्रोफेशनल्स को लेगा, प्रोफेशनल्स को लेगा। एज कहाँ से आ जाएगी, 20, मानिए अब आज तो 24 की एज में अब जॉब लग रही है, तो मानिए 24 से लेकर 40 की एज को टारगेट करेगा, बिकॉज अब 40 वो नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो उनको टारगेट करने की कोशिश करेगा। फिर वो कहाँ पे टारगेट करेगा, अगर वो ऑल ओवर इंडिया में रन कर रहा है अपना बिजनेस, तो वो ऑल ओवर इंडिया को टारगेट करेगा। अगर मानिए वो सिर्फ दिल्ली को टारगेट कर रहा है, मतलब वो चाहता है कि ये बैग सिर्फ दिल्ली वाले लोगों के लिए ही बना हुआ है, तो वो स्पेसिफिकली सिर्फ दिल्ली को ही टारगेट, फिर वो ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं रहेगा। तो इसे कहते हैं मोफू। मोफू अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को देखता है, पोटेंशियल कस्टमर से उनको क्या मिलता है, उन सॉरी उनको ये पता चलता है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है, कितना ज्यादा नॉलेज है उनके पास। तो जो ये मोफू होता है ना टर्म, ये मोफू आपका हेल्प करता है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अवेयरनेस के बाद। तो इसमें आपके पोटेंशियल कस्टमर्स के बारे में पता चलता है। जब मानिए 100 लोग हैं, अभी आप लोग हो, ठीक है, लेट से क्लास में हम लोग 20 लोग हैं, 20 लोग में ग्रोथ मार्केटिंग का अवेयरनेस चल रहा है, ठीक है, लेट कंसिडर। अब 20 में से 10 कोई ऐसा पर्सन होगा जो मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे, जो मेरे से पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, तो वो मेरे लिए मोफू का काम करेंगे, तो ये मोफू कहलाता है। समझ में आया, मोफू द सेकेंड स्टेज ऑफ मार्केटिंग। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी को भी, या कोई कंफ्यूजन। भूमिका, आसिफ, चित्रा, हरीश, निखिल, ठीक है। नेक्स्ट कम टू अपना बॉटम वाले पे आते हैं, जिसे बॉटम ऑफ दी फनल कहते हैं। अब ये अपना होता है फाइनल स्टेज ऑफ दी फनल, ठीक है। इस स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बहुत और सिंपल टर्म में बात करें तो हेलो मैम। हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून पंकज, बोलिए। मैम जैसे कि आपको बताया, मैं 9 से 10 हो चुकी है डिजिटल मार्केटिंग की 9 से 10। क्लास हो चुकी है अभी तक, कह रहा हूँ मैं ना। पंकज ये वाली चीज में भी आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिए, हम मतलब अगर ये वाला है तो। मैम वो वाला नहीं है, अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब अभी हमारी क्लासेस हो चुकी है, कुछ क्लासेस हो चुकी है। अभी मैं क्या ये चाह रहा हूँ कि मतलब अभी मेरे मेरे को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये ग्रोथ मार्केटिंग वाला टॉपिक आपको। यस मैम। हाँ तो मतलब देखिए, ये उस फ्लो में नहीं है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा में रखी गई है क्लास,
मतलब ये जो आपके जो ट्रेनर पढ़ा रहे होंगे ना, वो आपका कंटिन्यू उस फॉर्म में चलेगा, ये आपका एक्स्ट्रा बस रखा गया है यस टॉपिक मैम। में। तो आप उनसे कंपेयर मत करना इस टॉपिक को। वो जो पढ़ा रहे हो आपको एक वन गो में पढ़ाएंगे टॉपिक। ओके मैम। हाँ, मतलब ये आपका मास्टर क्लास इसीलिए इसको रखा गया, बिकॉज मतलब हम आपके डेली वाले ट्रेनर नहीं है इस वजह से। ये आपका जस्ट एक होता है ना कि अलग से कभी एक जस्ट फॉर मूड रिफ्रेशमेंट या फिर कुछ अलग के लिए क्लास का, ये वैसा आपका क्लास है। तो आप अपने ट्रेनर से इस टॉपिक को कंपेयर मत करना, वो जो पढ़ाएंगे वो आपको वन गो में, जैसे उनका सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है वो वैसे आपको पढ़ाएंगे। ओके मैम। मैंने तो मतलब सोचा आप एक उल्टी क्लास की। नहीं 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 नहीं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी। ओके मैम, यही समझ में आया। मैंने कहा कल तो कुछ नहीं और नहीं नहीं पढ़ाया नहीं, था, आज तो कंफ्यूज कुछ मत और पढ़ाया। होइएगा, ये मास्टर क्लास इसीलिए इसको रखा गया, ये आपकी डेली वाली क्लास बिल्कुल नहीं है। जो ओके आपके मैम। रिस्पेक्टिव ट्रेनर होंगे ना, जो आपको डेली पढ़ाते हैं, वही आपको अच्छे से पढ़ाएंगे उस वाले में। यस मैम। ओके। सो अब आता है ये बोफू, जिसे बॉटम ऑफ द फनल एंड फाइनल स्टेज ऑफ द फनल कहते हैं, जहां पे आपके जो कस्टमर्स होते हैं ना, आपके प्रोडक्ट को बाय करते हैं। बाय मतलब खरीदते हैं ये वाले कस्टमर्स आपके। ठीक। यहाँ पे आपको अब ये पता चल जाता है कि आपने अपने बिजनेस के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया है, मार्केट में इसकी कितनी वैल्यू हो चुकी है, या फिर कितने आपकी ऑडियंसेस यहाँ पे जनरेट हो चुकी हैं, ये आपका फाइनल होता है, जिसे हम लोग बोफू कहते हैं। बोफू समझने का एक और तरीका भी होता है फाइनल स्टेज का। जब आपको कभी भी, जब आप कोई शॉपिंग करते हैं ना, आपको फ्री गुडीज मिलते हैं। जब आप नायका मेंस, नायका से कभी भी शॉपिंग करते हो, आपको फ्री के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? वो इसीलिए मिलते हैं कि आप यूज करो, आप मेरे प्रोडक्ट्स को और देखो। जब वो कुछ न्यू लॉन्च करते हैं तो हमेशा वो चीज आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं आपके ऑर्डर्स के संग। वो इसीलिए करते हैं कि अगर आपको ये भी पसंद आया है तो मे बी सम हाउ कुछ साइकोलॉजीज ऐसी भी होती हैं कि आप नेक्स्ट ऑर्डर में उस चीज को परचेज करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है। तो इसे हम लोग बॉटम ऑफ द फनल कहते हैं। तो बॉटम ऑफ द फनल में आप अपने प्रोडक्ट्स को क्या करना चाहते हो, यहाँ पे बाय करना चाहते हो। यहाँ पे आपका सक्सेस क्या होता है, शो हो जाता है कि आपने अपने मार्केट के लिए कितना, आपके अपने सॉरी बिजनेस के लिए कितना काम किया है। तो इन तीन फनल्स पे आपकी इंडस्ट्री वर्क करती है, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो मीडियोकर हो इन द सेंस कि 6 मंथ्स या 6 ईयर्स या 7 ईयर्स वाली कंपनी हो, इधर वो बहुत अच्छी रेप्यूटेटेड कंपनी क्यों ना हो। बट अगर कोई कंपनी है तो इन्हीं फनल्स पे वो मार्केटिंग के अंदर काम करना प्रेफर करती है। और अगर आप ये आप टॉपिक इसलिए भी रख लेना क्योंकि ये जो फनल होता है इसको कभी कभार इंटरव्यू में पूछ भी लेते हैं। पहले फनल कुछ अलग तरीके के आते थे, वो 7 स्टेजेस में थे, वो ओल्ड फनल था। न्यू फनल में आपके ये 3 टाइप के ही फनल है जो आपकी पूरी मार्केटिंग को डिस्क्राइब कर देते हैं एक के अंदर, विच इज टोफू, मोफू, बोफू। और अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो अच्छे तरीके से, तो बिजनेस का तो फिर भोपू ही बच जाता है, तो नहीं कुछ कर सकते इसके अंदर। अब बात ये करते हैं हम लोग, होपफुली ये तीनों फनल समझ में आए हो। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस मैम। मैम ये जो बॉटम ऑफ द फनल है हाँ, मैम, इसका एक और कोई एग्जांपल आप दे सकती हैं? क्योंकि जैसे ये फाइनल स्टेज है, मतलब कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय ही करता है ये परचेज इस करता स्टेज है। में, परचेज परचेज करता करता है। है, या फिर कोई सर्विस मतलब है तो उसको यूज करता है। मतलब सारे प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने के बाद ये लास्ट स्टेज में कस्टमर आता है जहां ये बाय करता है प्रोडक्ट को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे कि हम सिंपल से कॉस्मेटिक से स्टार्ट करते हैं, नहीं आया तो कोई और एग्जांपल लेंगे। एक्वालॉजिका का एड दिखा तो आप उससे अवेयर हुए। ठीक। यस आपने मैम। क्या किया, आप उसकी वेबसाइट पे गए, 2-3 प्रोडक्ट्स को आपने सर्च आउट किया, रिसर्च किया एंड ऑल दैट, तो आप उसके पोटेंशियल कस्टमर्स बने। ठीक। ठीक है। पोटेंशियल कस्टमर क्यों बने? क्योंकि आपने अपना इंटरेस्ट आगे से शो किया उनकी तरफ, फिर आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज किया, तो वो आप बॉटम ऑफ द फनल में आ गए। और अगर ओके। सिंपल मिले तो मानिए अभी स्ट्यू वैली में आपने डेमो क्लास ली। ठीक। अवेयर हुए, आपको किसी से कोई एड के थ्रू या कैसे पता चला, आप आए, आपने क्या किया, डेमो क्लास लिया। डेमो क्लास लिया तो आप अवेयर हुए कि भाई ठीक है, अभी भी आप डाइसी सिचुएशन में हो, ज्वाइन करे कि ना करे। आप आते हो मोफू पे। मोफू पे क्या करते हो, आप इंक्वायरी और करते हो। आप बोलते हो भाई मुझे एक बार और क्लास लेनी है, बट दिस वाज माय फाइनल क्लास, इसके बाद हम सीधे ज्वाइन ही होंगे या फिर नहीं होंगे, जो भी आपका डिसीजन है।
तो वो आप आते हो पोटेंशियल में, बस आप आगे से अपना इंटरेस्ट शो किए हो कि भाई क्या है और क्या सिखाया जाए, जो भी इंक्वायरी जिसे हम लोग कहते हैं अपने इस टर्म में। फिर अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप अपने आ जाते हो बॉटम ऑफ द फनल में। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप किसी और मतलब कि कहीं आप अगर मेरे लिए पोटेंशियल कस्टमर नहीं बने हो या फिर बॉटम ऑफ द फनल नहीं बने हो, तो आप किसी और इंस्टीट्यूट के लिए बॉटम ऑफ द फनल बनोगे, लेकिन प्रोसीजर आपका यही रहेगा। आया ना ठीक है समझ मैम। में चित्रा? यस मैम, समझ आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जो ये क्लासिकल फनल्स होती है ना, इसमें सिंपल चीज है कि आपको अपनी ऑडियंस को क्या करना होता है, नोन होना होता है। अपनी ऑडियंस नोन इन द सेंस कि आपकी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट क्या है उससे नोन होना पड़ता है। आपको अपनी ऑडियंस को एजुकेट करना पड़ता है। अब आप एजुकेट कैसे कर सकते हो? हर को आप वीडियो कॉल में पढ़ा तो सकते नहीं हो, तो आप इसके लिए मार्केटिंग करते हो, आप इसके लिए सोशल मीडिया ऐड करते हो, आप इसके लिए गूगल एड्स करते हो, आप इसके लिए यूट्यूब मार्केटिंग करते हो, आप इसके लिए ब्लॉगिंग करते हो। तो उससे आप उसको एजुकेट करते हो, और फिर एट द एंड आप नर्चर करते हो अपनी ऑडियंस को, जिससे कि आपका बिजनेस क्या कर सके, ग्रो हो सके। एट द लास्ट आपका जो भी डिमांड एंड सप्लाई और जो भी आपका ग्रोथ होता है ना आपके बिजनेस का, वो आपका क्रिएट हो जाता है। इसी को हम लोग लीड जनरेशन भी कहते हैं। बहुत लोग जैसे मार्केटिंग जो करते हैं, स्पेशली बिकॉज अभी हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात किए हैं, तो ये इस वाली चीज को हम लोग दूसरे टर्म में, इवन दो डिजिटल मार्केटिंग के टर्म में क्या कहते हैं, लीड जनरेशन मार्केटिंग। और यही लीड जनरेशन मार्केटिंग जो आपका होता है, हेल्प करता है आपकी ऑडियंसेस तक आपको पहुंचने के लिए। अब बात ये करते हैं हम लोग कि देखिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जरूरी नहीं अगर 100 बिजनेस या 100 कंपनी आपकी डेली इंडिया में बिल्ट हो रही है तो वो 100 की 100 आपकी ग्रो भी कर रही होंगी। समझने की कोशिश करिएगा। अगर माने 100 भी छोड़िए, माने 20 कंपनी है, अगर 20 की 20 कंपनी इंडिया में अगर बन रही है तो 20 कंपनी ग्रो नहीं कर रही, कुछ बंद हो रही है, कुछ अभी भी सरवाइव कर रही है वेंटिलेटर पे, और कुछ आगे शायद ग्रो कर चुकी हैं। तो बहुत सारी ऐसे हैं। बट आपकी जो मार्केटिंग होती है वो स्ट्रैटेजी पे चलती है, ठीक है? क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो या ज्वाइन करते हो, वर्क करते हो ना, स्ट्रैटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। स्ट्रैटेजी के लिए आपको उस कंपनी का A to Z नोन होना चाहिए। कोलैबोरेशन पे बात करती है, कंटेंट मार्केटिंग पे बात होती है, PPC पे बात होती है, SEO पे बात होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे बात होती है, आपकी ईमेल मार्केटिंग। ये इतनी तरह का जब पैरेलली सारा काम चलता है तो आपका कंपनी एक लेवल अप की तरफ जाता है, ठीक है? जब ये सारी चीजें आपकी चलती, कोलैबोरेशन, इन्फ्लुएंसिंग, SEO, PPC है, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, व्लॉगिंग, ये स्ट्रैटेजीज, ये जितना जब एक बार में सब जब इकट्ठे होते हैं ना, तो जाके अभी कंपनी एक लेवल अप होती है। अब बात इसमें से हम आपकी अब देखिए एक चीज और, जैसे कि मैंने ऑडियंसेस में भी कहा आपके दो तरह की लीड्स होती हैं, ठीक है? आप दो तरीके से ऑडियंसेस कह रहे, सॉरी, इस टॉपिक में मैंने लीड्स की बात की थी। लीड्स आपके दो तरह की होती है। वो दो तरह की लीड्स आपकी कौन सी होती हैं? पहली लीड आपकी होती है हॉट लीड, ठीक है? हॉट लीड। सेकेंड आपकी होती है कोल्ड लीड, कोल्ड लीड। अब इन दो तरह की लीड्स के बारे में बात करते हैं इसके अंदर, फिर हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि ग्रोथ मार्केटिंग, एक बहुत अच्छा टॉपिक है। हॉट लीड जो आपकी होती है वो बेसिकली क्या होती है, जो आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं, जो आपके बिजनेस के बारे में, ये भी आप लिख सकते हो, लीड भी अपनी दो तरह की ही होती हैं, तो ये भी आप लोग एक जगह नोट डाउन कर लो। हॉट लीड क्या होता है, दोस हु नोस अबाउट योर ब्रांड, ठीक है? ये हॉट लीड होती है आपकी। कोल्ड लीड क्या हो जाती है आपकी, डजेंट नो अबाउट योर ब्रांड, डज नॉट नो अबाउट योर ब्रांड। और कोल्ड लीड से ही कोल्ड कॉलिंग वर्ड निकला हुआ है, जैसे हम लोग कोल्ड कॉलिंग कहते हैं। अब देखिए जब कोई आपके ब्रांड के बारे में नहीं जानता ना, तो हम लोग उसको टोफू में ले जाते हैं, जहां पे सिर्फ अवेयरनेस कराना होता है। और जो आपके ब्रांड के बारे में जानता है वो आपके बॉटम में आ जाता है, जिसे बोफू कहते हैं, ठीक? बिजनेस भी इसी तरीके से चलता है। जब आप न्यू होते हो ना इंडस्ट्री के अंदर, तो आप टोफू में कंसिडर किए जाते हो, ठीक है?
क्योंकि आपके ब्रांड के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन जब आपके ब्रांड के बारे में कोई जानता है और आप ग्रो करते हो, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्स्टेंटली ग्रो करते हो, तो आप बोफू के अंदर कंसिडर किए जाते हो। इसी टॉपिक में अभी जैसे मैंने आप एक टर्म का यूज किया था, अ, अब बात अगर हम लोग ऐसे करें कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, अगर हम लोग इस टेक्निकल में बात करें थोड़ा सा और, तो इंडस्ट्री को लेकर अगर बात करें, तो आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है। एक इंडस्ट्री को अच्छा बनने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक, आपके लॉयल कस्टमर्स होने चाहिए, लॉयल कस्टमर होने चाहिए आपके। दूसरी चीज, आपकी बिग मार्केटिंग टीम होनी चाहिए, बिग मार्केटिंग टीम। अगर आपकी मार्केटिंग टीम बहुत छोटी है ना, बहुत छोटी है, कुछ नहीं होने वाला, मतलब कुछ भी नहीं, कितना भी मेहनत कर लो, मार्केटिंग टीम में फ्रेशर से ज्यादा एक एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज वही जो एक्सपीरियंस पर्सन होगा फ्रेशर्स को ग्रोन अप कर पाएगा। ठीक है। फिर आपकी जो क्या बोलते हैं, अ, अगर बात करें, एक टर्म मैंने बोला था कोलैबोरेशन, अगर आपको थोड़ा पहले याद है कि मैंने बोला कि आप कहाँ कहाँ से अपनी कंपनीज को बिल्डअप कर सकते हो, आप कोलैबोरेट कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, एसईओ कर सकते हो, पीपीसी कर सकते हो। तो उसी में एक टर्म हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, और जिसपे अभी हम यहाँ पे अपना टॉपिक कंक्लूड करना चाहेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं कोलैबोरेशन। जब कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप ही की कंपनी, ठीक है, मिलती जुलती कंपनी से टाई अप करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब एक एजुकेशन से नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो कॉम्पिटिटर कहलाएगा, बट एक एजुकेशन एक एजेंसी से टाई अप कर सकता है, बिकॉज वो उसको ग्रो करेगा। गूगल पे हर कोई यूज करता है, ये सुनो, गूगल पे, जेप्टो, ये सब आप लोग यूज करते हो। ठीक है। स्क्रैच कार्ड्स मिलते हैं आप लोगों को, स्क्रैच कार्ड। तो स्क्रैच कार्ड्स में अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, आप लोगों को पैसे नहीं मिलते, अब कूपन ज्यादा मिलते हैं। कुछ शॉपिंग की है उस कूपन से? नेक्स्ट शॉपिंग के लिए किए हैं कई बार। किया है। वो आपको क्यों बोलते हैं डिस्काउंट कम करके देते हैं? दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन मार्केटिंग। गूगल पे पे अगर आप लोग देखोगे ना, स्क्रैच कार्ड्स मिलते हैं, अब पैसे नहीं मिलते। जब स्टार्टिंग में गूगल पे था, 100 मिल रहे हैं, 500 मिल रहे हैं, किसी का तो पूरा बिल का ही बजट निकल आया है, तो बहुत जी सारा। जी। बट अब वो नहीं मिलता, अब अपने को मिलते कूपन्स। दैट इज कूपन्स मिलते हैं, कॉल्ड, डिस्काउंट। एग्जैक्टली, डिस्काउंट कूपन क्यों मिलते हैं? वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नायका हो, बॉम्बे मेंस शेविंग हो, चाहे वो आपका डर्मा हो, चाहे वो एक्सरसाइज कोई भी कंपनी हो, स्कल कोई भी कैंडी हो हो। वो। हाँ, वो जी क्यों जी करे? वो जी। कोलैबोरेशन मार्केटिंग कर रहे हैं। कोलैबोरेशन मार्केटिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रोथ मार्केटिंग। वो जी। कोलैबोरेशन मार्केटिंग इसीलिए कर रहे हैं कि भाई अगर तुम एड के थ्रू मेरे नहीं आओगे ना, हम तुमको गूगल पे लालच देंगे डिस्काउंट का, तुम तब तो हम्म। आओगे मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए। तब। तो दैट इज कॉल्ड अ, बोल सकते हो आप, फ्रेंडली कोलैबोरेशन। कि ये जितनी भी कंपनीज हैं, एक्स वाई जी, इनका फ्रेंडली रिलेशन किससे बना हुआ है? गूगल पे से। तो इससे कहते हैं कोलैबोरेशन मार्केटिंग। तो जब आप कोलैबोरेट करते हो, तो आप एक फ्रेंडली रिलेशन, दो कंपनीज के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन बिल्डअप करते हो, और तब जाके आपका एक लेवल क्या होता है, अप होता है। तो इन ऑल ओवर ग्रोथ मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फंडा होता है जो कोलैबोरेशन, और कोलैबोरेशन मार्केटिंग हर कंपनी के लिए काम नहीं करता, ये भी याद रखिएगा। अगर कोई ये बोल दे कि 100 में से 100 कंपनी के लिए कोलैबोरेशन काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं। कोलैबोरेशन सिर्फ उनके लिए काम करता है जो वैल्यूएशन वही एक जो रेप्यूटेटेड बराबर है। कंपनीज हो, बिग एम्प्लॉयज हो, बिग मार्केटिंग टीम्स हो, और उनके पास एक्सपीरियंस स्ट्रैटेजी वाले पर्सन हो, सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है। क्यों काम करता है, उसका भी एक रीजन है। अब आप किसी और स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहे हो, और वो कंपनी का पर्सन किसी और स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहा है, आप लोग कभी भी फ्रेंडली रिलेशन नहीं बिल्डअप कर पाओगे। तो कोलैबोरेशन में एक फ्रेंडली रिलेशन बिल्डअप होने की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके आपकी कोलैबोरेशन मार्केटिंग या फिर ग्रोथ मार्केटिंग आपके बिजनेस के लिए एक लेवल अप कहलाती है। अदरवाइज बिल्कुल भी आपकी ग्रोथ मार्केटिंग जीरो हो जाएगी। और ये न्यू कंपनीज के लिए तो कोलैबोरेशन मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज, अगर उनको लगता है कोलैबोरेशन मार्केटिंग अच्छी है, बिल्कुल भी नहीं अच्छी है। ये उन्हीं के लिए अच्छी है जो कंपनी मोर देन 10 ईयर्स से ज्यादा हो चुकी है। हाँ, अगर स्टार्टअप कंपनीज के पास बजट इतना है, जिनकी मार्केटिंग टीम सुपर्ब है,
तो आप करो, तब आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज जीरो है स्टार्टअप कंपनीज के लिए। उस जगह पे अगर स्टार्टअप कंपनीज को ग्रो करना है तो वो अपने लिए पॉडकास्ट बिल्डअप कर सकती है। स्टार्टअप कंपनी जितना ज्यादा पॉडकास्ट बिल्डअप करेगी ना, जितना ज्यादा, देखिए स्टार्टअप कंपनीज के लिए ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होती है स्टार्टअप कंपनीज में कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते इनिशियल लेवल पे, कम्युनिकेट इन द सेंस कि कैसे अपने आप को प्रिपेयर होना है, कैसे अपने आप को पुट करना है, किस तरीके से बात करनी है कि लोग हमारे उससे अट्रैक्ट हो। उन लोग चाहते हैं, स्टार्टअप कंपनीज मोस्टली क्या करती है, वो बस याद कर लेती है, ऐसे नहीं होते डायलॉग्स वो याद कर नहीं। आप स्टार्टअप कंपनीज का थोड़ा सा, जो भी न्यू स्टार्टअप बन रहे हैं, उनका थोड़ा सा ये ड्रॉबैक आ गया है। उस जगह पे वो पॉडकास्ट बिल्डअप करे, कट कर ले, जो भी है आप एडिट कर लो, वीडियोस तो एडिट होती ही हैं, लेकिन अगर आप ओरिजिनल ग्रीन स्क्रीन पे अपना एक हाई क्वालिटी वीडियो बिल्डअप करते हो ना, एक अच्छा पॉडकास्ट क्रिएट करते हो ना, और बोलने तरीके में या बैठने के तरीके में या फिर जैसे भी आप करते हो, तो वो आपको और मतलब जो भी उस पॉडकास्ट को रीड आउट कर रहा है, बस उसको वो लगना चाहिए कि मेरे लिए ग्रोन अप है। तो स्टार्टअप के लिए पॉडकास्ट बहुत अच्छी चीज है, कोलैबोरेशन बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ग्रोथ मार्केटिंग यहाँ पे, मतलब मैं कंक्लूड इसी से कर लूंगी, ग्रोथ मार्केटिंग बेसिकली आपके क्लासिकल फनल्स पे ही वर्क करता है। और ग्रोथ मार्केटिंग हर कंपनीज के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए थोड़ा कम बेनिफिशियल हो पाता है, क्योंकि उनको बहुत मेहनत करनी होती है। ग्रोथ मार्केटिंग बेसिकली इन ऑल ओवर आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को ग्रैप करने के लिए होता है। सो अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम जस्ट एंडिंग दिस। कुछ भी ऐसा, निखिल, अभिषेक, किसी को भी कुछ भी ऐसा, भूमिका, चित्रा, सीता, मतलब कोई भी ऐसा, या फिर कुछ और पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो इन डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक, मतलब इसके रिलेवेंट में। हेलो। हाँ बोलिए अनिल। क्या मैम उस टॉपिक पे भी पहुंचने वाले, जो हम अक्सर जो इंस्टा पे वीडियोस देखते हैं, वीडियोस के बीच में जो एड्स लगती हैं, तो वो जो एड्स लगती हैं उस मार्केटिंग को हम क्या कहते हैं? यूट्यूब पे बात कर रहे हो आप? यूट्यूब प्लस इंस्टा पे दोनों पे ही आता है मैम, बीच बीच में वीडियोस किस के पे, बीच में यूट्यूब जो और? इंस्टाग्राम पे। हाँ हाँ, देखिए यूट्यूब वाली मार्केटिंग को हम लोग गूगल एड्स की मार्केटिंग में कंसिडर करते हैं। हम्म। जो यूट्यूब एड्स होती है ना, 5 सेकेंड्स की एड या स्किपेबल वाली एड्स, वो आपके जी। गूगल एड्स के अंदर में कंसिडर की जाती हैं। वो भी आपकी, मतलब ऐसे तो टेक्निकली आजकल लोग यूट्यूब मार्केटिंग बोलने लगे हैं, बट वो गूगल एड्स का पार्ट होता है। और ओके। इंस्टाग्राम मार्केटिंग जो आपकी होती है, जो आप रील्स के अंदर, वीडियोस के अंदर या फिर जो स्टोरीज के अंदर देखते हो, वो आपका मेटा मार्केटिंग कहलाता है, मतलब वो मेटा के अंदर आ जाता है, वो फेसबुक से रन होता है आपका। ओके। तो क्या हम उसको मतलब पार्ट में ये हमें आगे बताया जाएगा क्या, ये सारी चीजें जब क्लासेस ज्वाइन करेंगे? तो अभी मैंने कोई हाँ क्लासेस देखिए, नहीं, अच्छा मैं देखिए, डेमो वो ले तो रहा हूँ अभी। आपको ज्यादा वो रहेगा, तो अगर मानिए, अगर आप मेरी बात करो तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको बताना ही चाहिए, क्योंकि फेसबुक एड्स है, और फेसबुक के अंदर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक एड दोनों रन करना आपको बताया जाएगा। और अगर आप यूट्यूब मार्केटिंग की बात करें तो यूट्यूब के साथ आपको सर्च इंजन मार्केटिंग भी सिखाया जाएगा, जो गूगल एड के ऊपर नहीं आती है आपकी, यहाँ पे जो शो होती हैं आपकी, इस तरह जी। की जो एड आपकी होती हैं। एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो, जैसे रियल एस्टेट, तो जैसे यहाँ पे जो आपको स्पॉन्सर्ड एड दिखती है ना इस पेज पे, तो इस जी। तरह की भी मार्केटिंग आपको बताई जाएगी। सॉरी, अगर मेरे में ऐड दिखाई दे तो, वरना दिखाई आपको दे ही पता होगा, रहा यहाँ है। पे दिख स्पॉन्सर्ड रहा है, लिखा दिख रहता है। हाँ, तो वो भी आपको बताया जाएगा वो उसके साथ स्पॉन्सर ऐड साथ। होती है कि वो तो अमेजोन के साथ या फ्लिपकार्ट के साथ भी दिखता है मैम, के स्पॉन्सर नहीं, ऐड भी है जो। amazon एंड फ्लिपकार्ट पे जो एड दिखती है ना, वो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ओके। और वो जो स्पॉन्सर ऐड भी दिखती है उस पे। हाँ हाँ, जो उस पे स्पॉन्सर्ड एड दिखती है ना, amazon के एप्लीकेशन पे, फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं। तो ओके। उसके लिए आपको अलग से, मतलब अलग से जैसे कि कोई कोर्स की जरूरत नहीं होती, बट उनकी लिंक अलग होते हैं, वो ओके। अलग ही लिंक होती है। तो उस पे आपको खुद से ही क्रिएट करना पड़ता है हर चीज। तो उसका ये डिजिटल मार्केटिंग का वो पार्ट नहीं होता। वो amazon फ्लिपकार्ट का खुद का अपना मार्केटिंग पैनल होता है, वो उस पे काम अपना करवाता है। तो क्या वो भी पार्ट हमें पढ़ाया जाएगा इसमें कि किस तरीके से हम फ्लिपकार्ट और नहीं अमेजन देखिए, पे ऐड वो लगा वाला सकते हैं? देखिए डिजिटल मार्केटिंग में वो इसलिए नहीं है, क्योंकि वो इंडस्ट्री में यूज नहीं होता।
अगर ओके वैसे वैसे बात करें तो, अगर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ ये उनके लिए यूज आप बोल सकते हो जिनका खुद का प्रोडक्ट है और जिनको एजेंसी से काम नहीं करना और वो खुद से सीखना चाहते हैं या फिर खुद से अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना चाहते हैं। जी तो जी उसके लिए जी। Amazon एंड फ्लिपकार्ट अपना खुद का पैनल देता है, जिसमें आप एजेंसीज का बिना यूज किए आप खुद के प्रोडक्ट की खुद से सेल्फ लिस्टिंग कर सकते हो उस पे। एड्स रन कर सकते हैं हम सेल्फ हाँ से। वो आप खुद से कर सकते हो, मतलब किसी एजेंसीज के पास जाने की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर कुछ पैसा आपको देने की। तो वो खुद से, इसलिए Amazon और फ्लिपकार्ट अपना खुद से वो अलग रखा है। ओके, हाँ। थैंक यू मैडम। वेल, ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग दी एंड करें सेशन फिर। Ma'am, before that, I just want to talk to the या students श्योर। about the feedback. Yeah, could you please stop this या screen? आई एम जस्ट स्टॉपिंग, जस्ट या डन। Yes, ma'am. Okay, okay. So, good afternoon, everyone. Please drop your feedback on the Zoom chat box so that we can get an idea like how you like the master class or how was with the ma'am, anything. Students, please drop your feedback about the class into the Zoom chat box. Sita, should I leave that? Maybe then they will mean comfort. Huh? No, ma'am, it's fine. Okay. Valuable and interesting. Okay, what about others? Okay, that's very good of you. What about others? There are few more left. Okay, that's good enough. So thank you so much for this wonderful feedback. So thank you everyone for joining this class. Thank you so much, ma'am, for this Thank you. wonderful master class. Thank you. Welcome.